Today I am going to start new topic, subsidiary book. So under this book we will learn meaning of subsidiary book, types of subsidiary book, then meaning of cash book, types of cash book and preparation of cash book. So first we will see the meaning of subsidiary book. So subsidiary book is a subdivision of journal. In each of transaction of similar natures are recorded. These are books of primary entry. Instead of recording all the transactions in journal, so the transactions are recorded in a large number of prescribed books like cash book, purchase book, sales return, purchase return, journal proper. तो इसका मतलब जो है आपको जो है सब्सिडी बुक मतलब जैसा कि जर्नल का एक सब डिवीज़न है, इसमें जो भी आपका जो सिमिलर नेचर होता है उसमें जो है वो बुक में जो है लिखा जाता है। और जो है आपको इसको बोलते हैं प्राइमरी एंट्री, नहीं तो जो ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं। जो जर्नल एंट्री जो है एक ही बुक में लिखने का बदली जो है सो ये जो अलग अलग जो है बुक में लिखा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सो ए स्मॉल बिजनेस can enter the transaction in a journal entries, but it is very difficult for big concern to record all the transaction in a one book and posting ledger and balancing accounts and opening balance. It is a very difficult task. So that's why we are going to open a subdivision book. So that is a subsidiary book. Under subsidiary book, all the transactions are directly posted into subsidiary book. No need to prepare journal or ledger, and all the information we are getting easily, and all the transactions are posting directly on daily basis. So that's why today we are going to study about subsidiary book. मतलब क्या है, अगर छोटा अगर बिजनेस है होने से उनके लिए ईजी है, सारा ट्रांसैक्शन जो है जर्नल में बनाने के बाद जो है आपको क्या है सो सेल्स क्या है, परचेस क्या है, सो आपका क्या परचेस है, सारा चीज़ ईजिली मालूम होएगा। सो वही जगह पे अगर बड़ा बिजनेस है तो उनको जो है आपको पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसा कैश के बारे में जो है आप जर्नल बना के फिर लेजर बना के उसमें जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उससे बहुत जो है आपका इजी काम नहीं है। तो इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं, जो है सब्सिडी बुक जो है कंपनी जो है बनाती है। सो वही चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ subsidiary book. Types of subsidiary book. First one, cash book. Number two, purchase book, or you can say purchase journal book. Third one, purchase return book. Fourth one, sales book. And fifth one, sales return book. And last one is journal proper. So cash book means under cash book we will record only the cash transaction. So no credit transaction will be recorded under this book. Either it may be receipt or payment. So all the receipt and payments we will record under cash book. Second one, purchase book. Under this book we will record only the credit purchase of goods. So all the credit purchase comes under this book. If any cash purchase means it will goes to a cash book. So the third one, purchase return book. Sometime the business may be returning goods to supplier or wholesaler or company due to some defect or poor quality of the goods. So that will be recorded under purchase return book. And fourth one, sales book. All the credit sales are coming under this book. If any sales, any cash sales are there, means it will goes to cash book. And sales return book. Sales return means sometime the debtor or customers returning their goods
due to some defect, so that will be recorded under sales written book. So last one is journal proper. So journal proper is used for recording those transactions which cannot be recorded in any of the subsidiary book, so that is a journal proper. कैश बुक का मतलब जो है सिर्फ जो है कैश ट्रांसैक्शन जो है उसमें लिखा जाता है, क्रेडिट ट्रांसैक्शन इसमें नहीं आएगा। वैसा ही जो है परचेस, क्योंकि आपका मेजर पार्ट इन ए बिजनेस, मेजर ट्रांसैक्शन कैन सी द कैश ट्रांसैक्शन, सो ऑल द कैश ट्रांसैक्शन विल कम्स अंडर कैश बुक। जो बिजनेस में अधिकतर 90% जो है आपका ट्रांसैक्शन क्या करेगा, कैश करेगा, सारा जो है इसमें आ जाएगा। सो नेक्स्ट जो है परचेस बुक। सो परचेस बुक में सिर्फ जो है उधार में जो भी बिजनेस जो है सामान खरीदता सप्लायर से, वो चीज़ आएगा। और यहाँ में जो है परचेस रिटर्न बुक मतलब कभी कभी क्या करेगा बिजनेस जो है जो खरीदा वाला चीज़ को क्या करेगा, लौटाएगा, क्योंकि उसमें जो है आपको क्या सामान जो है ख़राब था होगा, नहीं तो जो क्वालिटी था, क्वालिटी जो है बताया उसमें क्वालिटी नहीं था होगा, इसलिए वापस किया होगा, तो वो चीज़ को जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सेल्स बुक। सेल्स बुक मतलब जो भी उधार में बिजनेस जो है बिक्री करता, तो वो सारा चीज़ को जो है यहाँ पे सेल्स बुक में हम लोग लिखेंगे। सेल्स रिटर्न बुक मतलब जैसा कि डेटार हो गया, कस्टमर हो गया, सामान को अगर लौटा था कुछ जो है ख़राबी की वजह से, नहीं तो जो है आपको कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो वो चीज़ को क्या करेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जो है बुक जो होता है, जो ट्रांसैक्शन को जो हम लोग सब्सिडी बुक में नहीं लिख सकेंगे, और जो ये जो है चारों अगर पाँचों में से अगर नहीं आता, जो भी जो है ट्रांसैक्शन लिख नहीं पाएगा, वो चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। फर्स्ट विल सी द मीनिंग ऑफ कैश बुक। पहला चीज़ जो है हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ कैश बुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द बिजनेस दैट मे बी स्मॉल और बिग, ऑल आर प्रिपेयरिंग कैश बुक। जो छोटा हो बड़ा हुआ हर कोई जो है आपको क्या है कैश बुक बनाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक मीन? कैश इज ए बुक इन विच ऑल द कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। मतलब जो है कैश बुक एक तरह बुक है, उसमें से जो भी बिजनेस का जो भी कैश रिसिप्ट होता है, कैश पेमेंट होता है, वो सारा जो है लिखा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। नाउ टाइप्स ऑफ कैश बुक, कितना तरह का कैश बुक जो होता है। नंबर 1 सिंपल कैश बुक, नंबर 2 डबल कॉलम cash book, and third one is triple column cash book, and fourth one petty cash book. Simple column cash book means there will be one amount column in each side. We know accounts look like T format. This part we are calling as debit part, this part we are calling as credit part. इसको बोलते हैं डेबिट साइड, इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो इसमें से जो है इट इज़ लुक लाइक अ लेजर की तरह रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एक ही अमाउंट कॉलम रहेगा। दोनों साइड, इस साइड में तो इसलिए बोलते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक। अंडर सिंपल कैश बुक, all the receipts we will record under the debit side, and all the payments we will record under credit side. इसको बोलते हैं सिंपल कैश बुक। नेक्स्ट वन इज डबल कॉलम कैश बुक, और यू कैन से दैट इज डबल कॉलम और 2 column कैश बुक। अंडर इट देयर विल बी 2 amount column. One will be cash column, second one will be bank column. Here that means amount, there will be the 2 amount column, rest all same. मतलब क्या है, डबल कॉलम कैश बुक में जो है आपको क्या एक रहेगा कैश और ये रहेगा बैंक, दोनों साइड। नहीं तो और एक भी है, जैसे कि आपको कैश एंड डिस्काउंट, और ये होता है बैंक और डिस्काउंट, बट आपको सिलेबस में दिया है, बट इन योर सिलेबस गिवन डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। जो है आपका डबल कॉलम कैश में जो है आपका 2 ही दिया है, कैश एंड बैंक दिया है। नेक्स्ट में ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम मीन्स इन बोथ द साइड यू कैन सी दैट 3 amount column. One is discount column, then cash column, then bank column.
Similarly, this side also, the 3 column will be the amount column, discount received, here discount allowed, discount received, then cash and bank. But it is not in our syllabus. So we will study simple column, double column. One more is the petty cash book. So petty cash book is the book in which small amounts are recorded, small expenses are recorded, like stationery item like pen, register, and then repairs, courier charge, like that. So वो सारा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे. सो सिंपल में एक ही अमाउंट कॉलम रहेगा दोनों साइड. डबल कॉलम कैश में जो है 2 अमाउंट कॉलम रहेगा, जैसे कि आपको सिलेबस में दिया. डबल कॉलम कैश बुक में जो है कैश एंड बैंक दिया हुआ है. तीसरा जो है ट्रिपल कॉलम है, इट इज़ नॉट योर सिलेबस, सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना नहीं, बाद में आप कॉलेज में पढ़ेंगे. आप पेटी कैश बुक मतलब जो छोटा छोटा होता है, जो है जैसे कि 10 जो है स्मॉल अमाउंट होता है, जैसा आपका टीक हो गया, नहीं तो रजिस्टर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इस तरह छोटे छोटे चीज़ का जो है अकाउंट जो बनाते हैं उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक. सो फर्स्ट विल सी सिंपल कैश बुक. सो फर्स्ट आई विल प्रिपेयर द फॉर्मेट, देन विल गो टू द प्रॉब्लम. पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग देखेंगे. सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ सिंपल column cash book. So first one is date. Here first we'll write debit, here credit. So first is date column. Here you can write receipt. Here LF, ledger folio. Then amount column. Same like this side also, date. Then particulars. Then LF. Then rupees. Here we will write middle of the column, will write simple column, or you can write single column cash book also, both are same. So it is look like a ledger account, but in ledger account already we prepared, already we studied cash account, but only one thing we changed, instead of cash account we will write cash book. So remaining are same. जैसा कि हम लोग ऑलरेडी लेजर पढ़े हैं, जो है उसमें कैश अकाउंट लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश बुक. सो उसी तरह, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट का यहाँ पे कैश बुक लिखेंगे, रेस्ट ऑल सेम है. सो फर्स्ट जो है डेट कॉलम, वी नो दैट मीन्स देर आर 2 साइड्स आर देयर, वन इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. इन डेबिट साइड देर आर 4 कॉलम्स आर देयर. फर्स्ट वन इज डेट कॉलम. सो दिस साइड मीन्स दिस साइड विल राइट रिसीविंग कैश. सो डेट ऑफ रिसीविंग कैश मतलब जो डेट में आपको पैसा मिल रहा है, ये डेट इस साइड इसमें लिखेंगे. ऑन दिस साइड डेट ऑफ पेइंग कैश, जो डेट में आपने पेमेंट करता वो सब डेट यहाँ लिखेंगे. द नेक्स्ट वन रिसिप्ट. सो रिसिप्ट मीन्स ऑल मीन्स सो वेन एवर एनी कैश इज कमिंग, वेन एवर कैश इज कमिंग इन साइड द बिजनेस, जब भी पैसा आ रहा है, सो इट विल कम्स अंडर दिस साइड, रिसिप्ट बोलते हैं. सो नॉर्मली सो कैश इज कमिंग अंडर डिफरेंट रेट्स, either from the person or from the any incomes or from the sale of goods, or either we are receiving money from debtors. So all the receipts are coming under this side. जो भी पैसा आएगा वो आपको क्या है, जैसा कि सामान से मिलेगा, नहीं तो कोई पर्सन से, डेटा से भी मिल सकता है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी से, नहीं तो सेल्स से, सो मिसलेनियस इनकम से, सो जो भी है इस साइड आ जाएगा. नहीं जो है लेजर पोलियो. लेजर पोलियो मीन्स आफ्टर प्रिपेयरिंग सिंपल कैश बुक, if you want then you can prepare ledger individual account also, उसको बोलता है लेजर पोली में, दैट इज अ पेज नंबर ऑफ लेजर. नहीं जो है अमाउंट कॉलम, दिस अमाउंट कॉलम फॉर रिसिप्ट अमाउंट कॉलम, जो भी आपको रिसिप्ट आएगा सो ये सारा जो है यहाँ लिखना है. देन डेट कॉलम, सो ऑलरेडी वी डिस्कस. देन पर्टिकुलर, दिस साइड वी विल राइट वॉट एवर अमाउंट वी आर पेइंग टू आउटसाइडर लाइक क्रेडिटर्स or to workers, or purchasing fixed asset, or some amount we are paying for expenditure. So that all the things coming under this side. That means here we will write payment, sorry, here we will write payment. Then next one LF, then that this is a amount column of payment. मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आप पेमेंट का, जो भी रिसिप्ट का, जो डेट में आपको रिसिप्ट होता है, पैसा मिल रहा है, वो डेट यहाँ लिखेंगे. ये जो हेड से आपको पैसा जो मिला है इस साइड लिखेंगे. नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, कोई आदमी से मिलेगा, नहीं तो कस्टमर से मिलेगा, नहीं तो डेटा से मिलेगा, नहीं तो सेल्स से मिलेगा, नहीं तो इनकम से आएगा, उसको रिसिप्ट बोलते हैं. और जो है एल मतलब लेजर पोलियो, जो है बाद में आप क्या कर सकते हैं, लेजर बना सकते हैं. यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है.
देन यहाँ पे जो भी आपको रिसिप्ट का अमाउंट यहाँ लिखा जाता है, द डेट जो है जो डेट में आपने पेमेंट किया वो डेट आएगा। देन पेमेंट मीन्स जो है जो पे करते हैं, जैसे कि परचेस ऑफ गुड्स होता है, सामान खरीदते हैं, नहीं तो पेमेंट करते हैं क्रेडिटार को, नहीं तो लोन पेमेंट करते हैं, नहीं तो आपको परचेस ऑफ फिक्स एसेट हो गया। सो ऑल द पेमेंट्स कमिंग अंडर क्रेडिट साइड। देन LF, देन दैट अमाउंट ऑफ पेमेंट अमाउंट कॉलम, जो है आप जो पेमेंट करते हैं वो सारा का अमाउंट कॉलम। सो दिस ए फॉर्मेट। If there is a existing business, so there will be the opening balance. If there is a new business means, so there is no opening balance. Suppose existing business means already the cash will be given like cash in hand or opening balance. We will start with here, that is a opening entry वो रहेगा। अगर नया बिजनेस होने से ओपनिंग एंट्री नहीं रहेगा, पुराना बिजनेस होने से क्या रहेगा, ओपनिंग एंट्री रहेगा। और यहाँ पे अंडर कैश बुक वी वॉन्ट रिकॉर्ड एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो है वी विल रिकॉर्ड ओनली द receipt. All the receipt will write under debit side, all the payment will write under credit side. So how to prepare the cash book? So there are two approaches already we have studied in chapter number 3, recording transaction 1. So according to the traditional approach, so the cash book will take as a real account. So under that rule for real account, so what comes in debit and what goes in credit. And second one, that means modern approach. So under that, cash we are taking as asset, we know that is asset. So what is the rule for asset means, if the assets are increased means it will come debit side, and if the assets are decreased means it will come, we will write under credit side. Sorry, increasing means debit side will write, decreasing means we will write under credit side. So you can follow any one of the rules, but I am going to follow the modern approach. So what is the rule for modern approach means, so under asset we know the rules. If the assets are increasing means increasing, it will come under debit side, debit, and decrease means you will write under credit side. The increasing indicate it is a plus and decrease means indicate it is a minus. जैसा कि अगर आपको दो अप्रोच होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दोनों में से कोई भी एक फॉलो आप करके बना सकते हैं। सो ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक इसको रियल अकाउंट माना जाता है। रियल अकाउंट को रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स, जो भी अंदर आएगा, जब जो भी पैसा अंदर आया उसको हम लोग डेबिट करेंगे, अब जो भी व्हाट गोस मतलब जो भी आप पेमेंट करेंगे आपको क्रेडिट करेंगे। सो नेक्स्ट जो है आपको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो है असेट को जो है रूल क्या है, इसको जो है असेट माना जाता है क्योंकि ये पैसा है, तो क्योंकि बिजनेस का असेट है तो इसको जो रूल क्या बोल रहा है, सो जो है आपको क्या इंक्रीज, जब आपको पैसा आ रहा है तो अब राइट अंडर डेबिट साइड, अगर पेमेंट कर रहे हैं डिक्रीज दैट मीन्स क्रेडिट साइड आपको लिखना है। तो ये रूल फॉलो करके हम क्या करेंगे आपको, सो आई विल टीच यू हाउ टू प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन। आपको जो है ट्रांसैक्शन से क्या करना, सिंपल कैश बुक बनाना। सो फर्स्ट जो है आपको दिया है 2020, फर्स्ट में कैश बैलेंस दैट मीन्स एग्जिस्टिंग बिजनेस, दैट इज ए ओल्ड बिजनेस। इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस दिया मीन्स जो है आपको क्या दिया है, इसका मतलब जो है ये ऑलरेडी बिजनेस पहले से चल रहा है। सेकेंड वन परचेज गुड्स फॉर कैश, देन थर्ड वन दैट मीन्स फोर्थ में पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देन फिफ्थ में पेड सैलरीज ₹1000, देन सिक्स्थ में सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5000, देन सेवन्थ में पेड वेजेस ₹200, एंड एट्थ में परचेज फर्नीचर ₹1000, देन टेंथ में कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉम ₹2200, देन 18th में पेड रेंट ₹500, देन 18th परचेज गुड्स ₹2000, देन 25th में सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू कमल ₹3000, द लास्ट वन 31st में पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। सो दिस इज अ ट्रांसैक्शन। सो विद हेल्प ऑफ ट्रांसैक्शन नाउ वी प्रिपेयर कैश बुक। जो है आपको ट्रांसैक्शन दिया हुआ है, आपको कैश बुक बनाना। फर्स्ट आई विल प्रिपेयर द फॉर्मेट, देन वी विल गो टू द, आफ्टर दैट आई विल टीच यू हाउ टू पोस्ट इनटू कैश बुक। सो फर्स्ट वन इज गिवन ओपनिंग बैलेंस। सो 2020 May 1st to balance brought on. So why I am writing this side means it is assets. So the opening balance will comes under debit side ₹12,000.
नेक्स्ट सेकंड में परचेज गुड्स फॉर कैश. नाउ we have to see whether the cash is inflow or outflow, whether cash is coming inside or going outside. Now this side already told you, if the assets are increasing, so it will comes under debit side. अगर asset बढ़ता है तो आपको कौन सा साइड आएगा? Debit side. If the payments are increasing, that means assets are, the cash is decreasing means you will write under debit side, sorry, credit side. अगर according to the rules of asset you are treated as asset means, so what the rule is say means, if I increase means we will write under debit side, if the asset is decreased means we will write under credit side. So according to this rule, so whatever amount is, when the cash is increased we will write debit receipt side, and when the cash is decreasing we will write under payment side. तो हिसाब से now purchase goods for cash, we are purchasing goods for means whether cash will be increasing or decreasing means, so it will be decreasing. So why it is a decreasing? We are purchasing goods for cash. So here we will write 2020 May 2nd by purchase account. So purchase means, so the cash will be decreasing. जो है आप पैसा दे के खरीद रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, जो है कैश जो है कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जो है आपको क्या पेमेंट साइड लिखा ₹2000. So next, paid traveling expenses. So this also expenses. So that means, so cash will be decrease. So ये भी पेमेंट एंट्री है. So paid जो है पेमेंट हुआ तो उस हिसाब से जो है आपको क्या करें, सो पैसा जो है कम हो रहा है. सो May 4th में पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹200. Next one, paid salary. So this also expenses. So that means cash is decrease. तो ये भी expenses है, पैसा जो है आपको क्या घटेगा. So 5th में by salaries account, salaries account ₹1000. Next one, goods sold for cash. Now, so business sold goods for cash. We know there are two types of transactions are there. One is cash transaction and one is credit transaction. So under this book we will take only the cash transaction, not a credit transaction. So goods sold for cash. So that means we sold goods for cash means cash will be increasing. Cash is increasing. So how the cash is increasing? Because of we sold goods. We are selling the goods means it is a revenue. We will get income in the name of revenue. जो है आपको क्या सामान बिक्री करते क्या है, क्या बिक्री करते सामान, सो पैसा आएगा. तो कौन सा साइड आएगा लिखिएगा हम लोग. सो डेबिट में हम लोग लिखेंगे. सो 6th में टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट ₹5000. नेक्स्ट जो है पेड वेजेस. Again there is expenses, so cash is decrease, so due to be paid wages. 7th में by wages account ₹200. जो है आपको क्या वेजेस दिया है, सो पैसा जो है घटेगा. द नेक्स्ट वन 8th में परचेज फर्नीचर. सो दैट मीन्स, सो वी आर परचेज फर्नीचर, दैट इज asset, that is a fixed asset. We paid cash. That means, so already the cash is reduced. मतलब क्या, it is outflow of cash. जो है आपको क्या फर्नीचर आपने खरीदा पैसा देके, तो पैसा जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. 8th में बाय फर्नीचर अकाउंट, ₹1000. सो 10th में कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम. दैट मीन्स, सो कैश विल बी इंक्रीजिंग. जो है राम से पैसा मिला है तो जो है आपको क्या कहाँ लिखना है, रिसीप्ट साइड लिखना है. 10th में कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम.
to RAM account rupees 2200, rupees 2200. The next one 18th May, paid rent rupees 500. So this also expenses. So cash will be decreasing rupees 500. 18th May, by rent rupees 500. The next one May, again 18th May, purchase goods, that means cash purchase. So cash will be decreasing. So if a cash is decreasing, we will write under payment side by purchase. 18th May, by purchase account rupees 2000. The next one 25th May, sold goods for cash to Kamal. So this is also cash transaction. We sold goods to Kamal for cash, not a credit. So here again the cash is coming inside, so cash balance will be increasing, inflow of cash. So May 25 to sale account rupees 3000. The last one 31st May, paid office expenses. Here also this is also expenses, so that means the cash balance will be decreasing by office expenses, office expenses account rupees 300. Now we have posted all the item. Now once again we have to balancing the account. So how to balancing the account means it is asset. So assets always, so debit will be more than credit side. जो हमेशा जो है डेबिट में ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए क्या करना, फर्स्ट जो है आपको डेबिट को टोटल करके क्या करना, क्रेडिट को भी टोटल करना. फर्स्ट व्हाट इज द स्टेप मीन्स हाउ टू क्लोजिंग द अकाउंट. फर्स्ट विल टोटल बोथ द साइड and we will take the bigger amount in the both the side. So in this case it is assets, so always we will get the bigger amount on the what, debit side, and we will get the lesser amount, shortage amount that side. So that will be the closing balance. So what is the total amount of this side means, so 17 plus 3 20, 22,200, 22,200. So what is the total of this side, 2,200, 3,200, 3,400, 4,400, 4,900, 4,900, 6,900, 6,900, then 300, that is 7,200. So in credit side we are getting the total 7,200. So this side we got 22,000. So this is a bigger amount. We will write the same amount in both the side. Then after that you will minus 22,200 minus 7,200 will come 15,000. तो 22 से जो है आपको 22,200 से 7,200 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 15,000. सो दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस. सो ये जो है आपको क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो है आपको क्या होगा, अगला महीना जो है आपको यूज़ होगा. तो मतलब इतना सारा खर्चे करने के बाद इतना पैसा बच गया. सो दिस अमाउंट विल बी द ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ. अगला महीना का जो है ये ओपनिंग बन जाएगा. सो मई के बाद क्या है, जून 1st टू बैलेंस ब्रॉड ऑन रुपीज़ 15,000. So this way only we will prepare simple column cash book. So all the receipt we will take under the debit side and all the payment we will take under credit side according to the rules of assets. So asset अगर इंक्रीज होता है तो इस साइड लिख देना. अगर आपको जो है पेमेंट अगर कैश डिक्रीज होता है इस साइड लिख देना. आपको जो है दोनों अप्रोच से कोई भी एक अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया असेट, इसलिए मैंने लिख दिया. सेकंड जो है आपको जितना भी जो है पैसा जहाँ से आएगा तो उसको यहाँ पे दिखा देना. जो भी पेमेंट है इस साइड आपको दिखा देना. सो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वी विल सी द डबल कॉलम कैश बुक.